سری نگر میں ایک نوزائیدہ بچے کی موت پر تنازع بڑھ گیا ہے۔ فوت شدہ بچے کے والدین نے ایک پرائیویٹ اسپتال پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے پولیس تھانے میں شکایت درج کی ہے اور اب ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر نے اس مسئلے پر جانچ کمیٹی بنانے کی بات کہی ہے۔ والدین کا الزام ہے کہ بچے کی اس نجی اسپتال میں پیدائش کے بعد ویکسین لگوانے کے بعد سوجن پیدا ہوئی جو انفیکشن میں تبدیل ہوئی اور 2 دن بعد بچے کی موت ہوئی۔ گھر والوں کا الزام ہے کہ اسپتال انتظامیہ کا کوئی بھی اسپتال میں موجود نہیں تھا اور انہیں مجبوراً اپنی گاڑی میں اسپتال منتقل کرنا پڑا اور وہاں داخلے کا انتظار کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انفیکشن پورے بدن میں پھیل گیا تھا۔ جب میں ڈیلیوری دے رہی تھی اس کے بعد مجھے جو پین فیل ہو رہا تھا اپنے بچے کو دیکھ کے وہ سب دور ہو گیا، لیکن اس ٹائم میرا بیبی نہیں ہے، میں کیا کروں اب اس کے بغیر؟ میں یہ پین کیسے سہوں؟ ہمارا تو خود کی عزت کرو پلیز۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی اور کے ساتھ ہو، جو مجھ پہ بیت رہی ہے میں نہیں چاہتی کسی اور کے ساتھ۔ یہ میرا پہلا بیبی تھا۔ ہم نے جب دیکھا تو جہاں پہ ویکسین لگی تھی وہاں پہ ان کا پورا یہ سوچ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے انہیں بولا کہ آپ کا پیڈیٹریشن کہاں ہے، ان کو بلائیے، مطلب ہی واز ناٹ پریزنٹ ایٹ دیٹ پلیس۔ سو ان کے ساتھ ہم نے پھر فون پہ بات بھی کی تو انہوں نے کچھ بولا نہیں، بولا کہ میں ابھی آؤٹ سائڈ ہوں، مطلب وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ڈیلیوریز بس پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے یہ بزنس کھول رکھا ہے کہ ڈیلیوری ہوگی مطلب عورت کی، اس کے بعد پوسٹ آپریٹو کیئر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ مطلب وہاں پہ اگر بچے کا جنم ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈاکٹر ہونا بہت ضروری ہے، پیڈیٹریشن خاص کر، تاکہ وہ دیکھے کہ بچے کی حالت کیسی ہے، کوئی کیئر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے سری نگر کے ایک نجی اسپتال میں بچے کی موت کے معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق کا کہنا ہے کہ ایک کمیٹی معاملے کو دیکھے گی اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ نیوز 18 اردو نے گزشتہ روز نومولود کی موت کے حوالے سے ایک رپورٹ نشر کی تھی۔ نومولود کے والدین کے مطابق نجی اسپتال کی جانب سے مناسب دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ کی نوٹس میں پہلے سے ہی معاملہ ہے تو اس معاملے میں آپ کیا کریں؟ آج جو ہم نے ایک ٹیم میں بنا رہا ہوں جو اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرے گا، جس میں ایک اوبسٹیٹیشن ہوگی، ایک گائنیکولوجسٹ ہوگا، ایک سرجن ہوگا، جس میں ایک آل ریلیٹڈ پیڈیٹریشن ہوگا، اور وہ تھورو انویسٹیگیشن کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ کارروائی کرنی ہوگی ہم ضرور کریں گے۔ پرائیویٹ بنے چاہے گورنمنٹ میں بنے یا کوئی نرسنگ ہوم ہے، اس کی اپنی گائیڈ لائن ہوتی ہے اور گائیڈ لائن کے بعد ہی وہ فلفل جو کرائیٹیریا کرتے ہیں تبھی اس کا جو لائسنس دیتے ہیں یا اس کو آپریٹ کرنے کا پرمیشن دیتے ہیں گورنمنٹ تبھی دیتی ہے، ادروائز اس کا پرمیشن نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک جو یہ ہاسپٹل ہے یا نرسنگ ہوم ہے بہت پرانا ہے، اس کو وہ لائسنس ہوگی ضرور ہوگی، اور جو ایز پر گائیڈ لائن سپوز لیب ہونی چاہیے، ایکس رے ہونا چاہیے، ڈاکٹر ایسے ہونے چاہیے، اسپیشلسٹ کی ٹائمنگ ہونی چاہیے، اور راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹر کا کور ہونا بہت ضروری ہے۔ کپواڑہ ضلع کے ہرل لنگیٹ ہندواڑہ میں گزشتہ شب ایک 4 سالہ بچے کی ہلاکت کو لے کر پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا اور پورے علاقے میں خوف اور ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ایک 4 سالہ بچہ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا کہ اچانک خونخوار تیندوا بچے پر جھپٹ پڑا اور اسے اپنا نوالا بنا لیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شام دیر گئے ہرن میں تیندوا نمودار ہوا اور 4 سالہ ثاقب پر حملہ ور ہوا۔ تیندوا اسے گھسیٹ کر جنگل کی طرف لے گیا۔ بچے کی چیخو پکار سن کر مقامی لوگوں نے تیندوے کا تعاقب کیا۔ مقامی لوگوں نے ثاقب کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا لیکن وہ تب تک دم توڑ چکا تھا۔ پورے علاقے میں اس واقعے کو لے کر سنسنی پھیل گئی اور رات دیر گئے بچے کو پرنم آنکھوں سے سپرد خاک کیا گیا۔ لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف کے افسران سے مطالبہ کیا کہ اس خونخوار تیندوے کو ہلاک کیا جائے کیونکہ اس علاقے میں اب مزید خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس سے قبل ہندواڑہ کے راجپورہ علاقے میں تیندوے نے ایک کمسن کی چیر پھاڑ کی تھی اور اس کی بھی موت واقع ہوئی تھی۔ ادھر محکمہ وائلڈ لائف کے افسران کا کہنا ہے کہ وہ اس علاقے میں اس خونخوار تیندوے کو پکڑنے کے لیے پنجرہ نصب کر رہے ہیں۔ چیتے نے جو ہے سامنے سے اٹھا لیا، یہاں پر اس کی ممی جو ہے گائے کا دودھ لے رہی تھی، وہاں پر اس کا فادر کھڑا ہوا تھا، یہاں پر اس کا چاچا،
लेकिन कोई पता नहीं चला। यहाँ पर बीच में जो है शेर ने झपट्टा मारा बच्चे के गर्दन पर, उसको लेकर जी इन लोगों ने फिर उसके पीछे भागे, नीचे जाकर जो बच्चा है बच्चे छोड़ाया, लेकिन बच्चे छोड़ा तो लिया उन्होंने, बच्चा बच पाता, लेकिन सबसे पहले ये कमजोरी है कि यहाँ पे 1.5 घंटा जो है नीचे रोड तक जाने में लगा। और वहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर रात को नाइट ड्यूटी में नहीं था, जो ये बच्चे का खून लॉस होने के कारण से बच्चा हमारा जो है डेथ हो चुका है। हम आपसे रिक्वेस्ट करें, गाड़ी भी नहीं, और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे किसी को फोन नहीं कर पाए, कहीं इनका राब्ता नहीं हो पाया, लोगों ने बच्चे को उठाया, काफी दौड़े बरसात के मौसम में, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हमें मार दो, हम मार जाएंगे, बच्चों का दुख नहीं चाहते हम। ये कौन सा इंसाफ है? ये जंगलात वालों का या और किसी महकमे का कौन सा इंसाफ है? ये हमारे लिए इतनी मुसीबत बनी हुई है। चलो गाय खाई तो कोई परवाह नहीं, भैंस खाई तो कोई परवाह नहीं, लेकिन बच्चों पर ये, इंसान पर ये हमला है। एलजी और नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ कि कम से कम अगर आप ये इलेक्शन कर रहे हो यहाँ पे डीडीसीओ की, बीडीसीओ की, ये आपको वहाँ बाहर दिखाने, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है काम? नहीं हो रहा है काम, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो रहा। 1.5 साल से हुआ यहाँ, मुझे इस इलाके में हुआ ही नहीं अभी आज तक कुछ। मैं क्या बता सकता हूँ इन लोगों को, नहीं हो रहा है। ये कोई बोलेगा कि शायद ये नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म में जहाँ भी, लेकिन आगे नहीं हो रहा। उसमें मरकज की कोई गलती नहीं, सिर्फ इस स्टेट की। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ये फेल है। मैं माजरत चाहता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि इसका जो बच्चा हुआ, ये मेरा बच्चा है, ये इसका ही नहीं है, ये हम सबों का है। गुज़िश्ता रोज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में कोथाडिया गांव में एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। कुपवाड़ा से करना जाने वाली कार नाचिया इलाके में खाई में गिर गई। जख्मी अफराद को करना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पूनियार में तैनात रूरल इंजीनियरिंग विंग रूरल डेवलपमेंट के साथ काम करने वाले असिस्टेंट इंजीनियर रविंद्र पाल सिंह को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मौसूला शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने एक जाल बिछा दिया, जिसमें मज़कूरा सरकारी मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वाजरे के बारामूला शहर में गुज़िश्ता दिनों से एसीबी ने मुख्तलिफ छापों में 4 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। डीएसपी एसीबी मोहम्मद रफीक ने कहा कि मुआशरे से बदनवानी की लानत को ख़त्म करने के लिए लोगों को महकमे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आपने देखा है भी कि हमने यहाँ रविंदर सिंह जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं RAW में 4,000 रुपया लेकर रिश्वत लेकर हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये लोगों को आगे आना चाहिए। जो रिश्वत की जो ये बीमारी है, ये रिश्वत देकर फिर रोना रोने से ख़त्म नहीं होगा। ये रिपोर्ट करना है देने से पहले ही। कश्मीर के वाजवान को फरोग देने वाले मुतनाज़ा दावती कार्ड के खिलाफ जम्मू में बजरंग दल के कारकुन सड़कों पर निकल आए। उनका कहना था कि दावती कार्ड पर गुरु शंकराचार्य की तस्वीर है, जिससे हिंदू समाज के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुजाहिरीन ने वजारत सकाफत का पुतला भी नजर आतिश किया। मीडिया से बात करते हुए बजरंग दल जम्मू कश्मीर के सदर राकेश बजरंगी ने कहा कि वजारत सकाफत को फौरी तौर पर कार्ड से शंकराचार्य की तस्वीर हटानी चाहिए। ये वाजवान व्यंजन का जो प्रमोट इन्होंने करने की कोशिश जो है ये दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर उस कार्ड के ऊपर, इनविटेशन कार्ड के ऊपर शंकराचार्य जी का चित्र लगाकर इन्होंने ये दर्शा दिया है कि यह सरकार भी हिंदू विरोधी है। अगर हिंदू समाज भगवान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को पूछता है तो वो शंकराचार्य जी हैं, और उन शंकराचार्य जी का अपमान हिंदू समाज का अपमान है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस कार्ड की बदली नहीं की, शंकराचार्य जी का चित्र उससे रिमूव नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम जो है इन सरकारों को यहीं पर भुगतने पड़ेंगे।
महकमे जल शक्ति से वाबस्ता डेलीवेटर्स ने आज जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी रैली निकाली। वो 2 दहाइयों से जायद अरसे से अपनी खिदमात सरे अंजाम देने वाले अफराद के ज़ेर इल्तवा वाजिबात की इजराई और नौकरी को मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजी मार्च चीफ इंजीनियर जल शक्ति जम्मू के दफ्तर से शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू की तरफ मार्च किया। डेलीवेटर्स गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अपने मसाइल के अजाले के लिए हुकूमत को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि महकमा उनके हकीकी मुतालबात को नहीं सुन रहा है। उन्होंने एलजी से मुदाखलत करके उनके मसाइल हल करने की अपील की है। हमारा जो 41 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, स्ट्राइक पर चल रही है, इसलिए जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में 25-25 साल लगा दिए हैं। सरकार ने हमारे डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट का बिजली के बगैर किसी भी रेगुलेशन नहीं दी है। हम चाहते हैं जो 94 के बाद जितना भी डेली वेजर कैजुअल लेबर लगी हुई है उसको पक्का किया जाए और 70 महीने का बकाया वेतन दिया जाए। हमारे साथ जिस भी सभी डिपार्टमेंट को बात करते हैं, जो एग्रोस्ट्रोलॉजी में लोग 15 सालों से 10 से लगे वो रो रहे हैं, वो जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट में रो रहे हैं। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जब अपने मफाद की खातिर हुर्रियत कायद मरहूम सईद अली गिलानी और मिलिटेंट कमांडर सईद सलाहुद्दीन ने तिरंगे को एक वक्त पर कबूल किया था, तो अब कुछ सियासतदानों को हर घर तिरंगे मुहिम पर एतराज़ क्यों है। अनंतनाग में हर घर तिरंगा के सिलसिले में मुनक्किदा पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने कहा कि कश्मीर में हर घर तिरंगा ज़रूर लहराएगा और ऐसे अफराद को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो इसके खिलाफ है। सूफी यूसुफ की क़यादत में खनबल में एक तिरंगा रैली का भी एहतमाम किया गया। मैं गिलानी साहब की बात करूं, मरहूम गिलानी की, उसने भी ये तिरंगा सर पे उठाया है। उसने भी तिरंगे के आईन के तहत इलेक्शन लड़ा है। अगर मैं सईद सलाहुद्दीन की बात करूं, उसने भी अमीरा कदल से तिरंगे के नीचे जो है इलेक्शन लड़ा है। और अगर फारूक साहब की बात करें, मोहब्बा जी की बात करें, वो बार बार चीफ मिनिस्टर बने। उनके वालिद साहब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी इल्हाक जब हिंदुस्तान किया तो उसने जो है तिरंगा अपने सर पे रखा। आज ये लोगों को कहते हैं कि ये हमारे दिल में तिरंगा है। हाथ में उठाने में इनको क्या तकलीफ है? इनके दिल में पाकिस्तान का भी है अपने वोट बैंक के लिए, चाइना का भी है और हिंदुस्तान का भी है। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, उन ताकतों को कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा मत दे दीजिए। म्युनिसिपल काउंसिल बानिहाल के सदर फारूक अहमद वानी ने सोशल मीडिया पर उनके दफ्तर को एग्जीक्यूटिव अफसर की तरफ से तालाबंद करने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मामला हाई कोर्ट में जेर समाअत है और इस जाली ऑर्डर को सोशल मीडिया पर फैलाने में काउंसिल के 2 मेंबरान मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके 2 काउंसलरों की तरफ से वायरल किए गए जाली ऑर्डर पर न एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुहर है और न ही दस्तखत मौजूद है। वाज़ेह कि पिछले साल म्युनिसिपल काउंसिल बानिहाल के साथ में 5 काउंसलरों ने म्युनिसिपल सदर फारूक अहमद वानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, जिसे चेयरमैन ने अदलिया में चैलेंज किया है और अब उसकी अगली समाअत 9 अगस्त को मुकर्रर की गई है। सोशल मीडिया के जरिए से ही देखा कि एक लेटर जो है वो गश्त कर रही है और जिसमें लिखा गया था कि एओ म्यूनसिपलिटी ने प्रेसिडेंट ऑफिस को सील किया क्योंकि सैटरडे का दिन था, संडे ऑफ होता है। मंडे को जब मैं आया अपने ऑफिस में तो मैंने चपरासी से ताला खुलवाया, उसने ताला खोल दिया तो हम आकर बैठ गए क्योंकि ये मैटर जो है 21 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बावजूद हम फिर कोर्ट में चले गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे जस्टिस दिया और केस हाई कोर्ट में चलता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आए रोज चट्टानें खिसकने और पस्सियां गिराने की वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना रहता है, जबकि शाहराह के बंद रहने से सबसे ज्यादा माल बरदार गाड़ियों से मुंसलिक ड्राइवरों और कंडक्टरों को तकालीफ उठानी पड़ती है। पेश है न्यूज़ 18 के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नंबर 44 पर अक्सर और बेशतर इस तरह का मंजर देखने को मिलता है जब शाहराह के कई मकामात पर ट्रकों और दीगर मालबरदार गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें कई किलोमीटर दूर तक नजर आती हैं। अगरचे जम्मू और श्रीनगर के बीच इन गाड़ियों का सफर महज चंद घंटों का ही होता है, लेकिन ड्राइवर्स का कहना है कि कभी कभार ये मुसाफिर तय करने में उन्हें 6 से 10 दिन का वक्फा तक लग जाता है और इस वक्फे के दौरान उन्हें जिस तरह की मुश्किलात, जिस तरह के मसाइब झेलने पड़ते हैं उसका गुमान तक करना आम इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। सर मैं इधर से पेट्रोल लेके आता हूँ बिशनर डिपो से श्रीनगर डिपो का, बाथरूम जाने की ना नहाने धोने की पानी धोने की बहुत दिक्कत है। अब आगे कोई पता नहीं रहेगा रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा, जो खुलेगा तो नहीं माल बताते हुए खुलेगा कि अभी बहुत 4 दिन के लंबा और लगेगा टाइम लगे, इसलिए बहुत परेशानी सर, इसका कोई सावधान निकालना चाहिए। नगर का माल लेके आया था दिल्ली से, 3 दिन आने में लग गए थे, 3-4 दिन यहाँ भी खड़े हो गए हैं, ना यहाँ खाने पीने को मिलता है जी। बाकी आप खुलने की बात करते हैं तभी 2 दिन में खुल जाता है, 3 दिन में खुलता है, इस तरह बात होती है, हमें जाने नहीं देते हैं। इन ड्राइवर्स का कहना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 4 लेनिंग का तामीराती काम अरसे दराज से जारी है, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम मुकम्मल होने से कबल ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर टोल टैक्स आयद करके इनकी परेशानियां मजीद बढ़ाती हैं। भारी टैक्स अदा करने के बावजूद भी गुज़िश्ता 11 बरसों से ये काम जारी है, जो कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता है। मेरे को 10 साल हो गए जी यहाँ गाड़ी चलाते ड्राइवरी करते हुए। मैं 10 साल से बठिंडा से श्रीनगर आ रहा हूँ, पेट्रोल लेके आता हूँ, डीजल लेके, ठीक है जी। हम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर सब कुछ करते हैं जी, लेकिन ये रोड वैसे का वैसा ही है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लैटरिन बाथरूम जाने के लिए बहुत परेशान हैं, पानी नहीं है जहाँ पे, बहुत दिक्कत आता है हमको। रोड ठीक नहीं हो रहा है जी, 10-10 दिन हो गए जहाँ हमको खड़े हुए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि कौमी शाहराह पर अक्सर और बेशतर मुसाफिरों की दरमांदगी के बावजूद भी इंतजामिया ऐसे मुसाफिरों की राहत के लिए इक़दामात उठाने से कासिर है। कौमी शाहराह पर शेल्टर शेड्स और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स के नाम पर कागजों पर तो बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं है। दरमांदा लोग बाज़ औक़ात पीने के पानी तक के लिए तरस जाते हैं। जब रोड बंद होता है तो पहले सबसे पहले बड़ी गाड़ियों को ही तंग करते हैं, नहीं किसी और साइड से जाने देते हैं। जब खुलता है तभी भी गाड़ियों को लास्ट में ही छोड़ते हैं। इधर कोई किसी प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है भैया। सर 10 साल हो गए इस रोड को काम चलते हुए, अभी तक तो कोई वो नहीं है। जब देखो छोटी सी बारिश होती है तो रोड बंद हो जाता है। वाज़ेह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ऑल वेदर रूट बनाने के लिए साल 2011 में यूपीए सरकार के दौर में एक जामे प्लान पर काम शुरू किया गया, जबकि उस वक्त काम मुकम्मल करने की मियाद 2016 रखी गई थी। लेकिन 11 साल के लंबे अरसे के बावजूद ये काम अभी तक नामुकम्मल है और इसका खमियाजा आम लोगों के साथ साथ इन ड्राइवर्स को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। श्रीनगर लेह हाईवे को जोजिला पास के करीब शदीद बारिशों की वजह से कई लैंडस्लाइडिंग के बाद सुबह सवेरे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से दोनों तरफ की ट्रैफिक आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है, जबकि मुतअद्दिद मुसाफिर गाड़ियां और अशियाए ज़रूरिया से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। वहीं बीकॉन ने लैंडस्लाइड्स को साफ करने के लिए अमले और मशीनरी को काम पर लगा दिया है। सीनियर नायब सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपने खानदानी विरासत को बचाने के लिए, अपने मौका परस्त सियासत के लिए ये दोनों जमातें एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने बेनकाब हो गई हैं। अब्दुल गनी वकील के मुताबिक PAGD का क़याम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए तश्कील दिया गया था, जो 2 खानदानों की हुक्मरानी को बचाने के लिए खुफिया मुआहदा था। जलूरा जैनगीर में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। यहाँ ट्रेडिशनल पार्टीज जो है, ट्रेडिशनल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, ये हमेशा लोगों को जज्बाती नारा देकर गुमराह कर रही है। उन ताकतों से लोगों को आगाह करना है कि ये लोग जो है
ये सिर्फ जज्बाती नारा जो उनका है, ये सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए किया जा रहा है। ये इक़्तिदार के हुसूल के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और बल्कि अगर इनको लाशों से भी चलना पड़े वो भी करेंगे, लेकिन इनको इक़्तिदार चाहिए। सीनियर समाजी और सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह ने जम्मू कश्मीर की सियासत में बदलाव लाने की बात कही है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में अब नए चेहरों को सामने आने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को इन नए चेहरों का साथ देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में तरक्की की राह को हमवार किया जा सके। अनंतनाग के अंजुला इलाके में एक सियासी इजलास खिताब के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। साथ ही उन्होंने लोगों से खरे और खोटे की पहचान करके आइंदा इंतखाबात में अपना फैसला करें। नहीं चाहते हैं कि कोई सियासत करे, कोई बोले नहीं बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, फलानी साहब ऐसा कर रहा है, फिस्तानी साहब ऐसा कर रहा है। लोगों को पता है बीजेपी किसने लाई यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि नया हो, नए चेहरे सामने आए, नौजवानों को मौका दे, नौजवान सामने आए। अगर हम में कुछ सलाहियत नहीं हो और कोई जो सामने आएगा उसको लोग अक्सरियत में कामयाब बनाए। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ नया हो और लोग, अब जो पुरानी सियासत है, जो पुरानी सियासी पार्टियां थी जिन्होंने लोगों के साथ खिलवाड़ किया, किसी ने बंदूक की तरफ धकेला नौजवानों को, हम चाहते हैं कि वैसा ना हो, दोबारा वो वैसा ना करे। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ज़ैनबपुरा शोपियां में डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी पर कई अटेंडर्स ने मेन गेट को ताला लगा दिया और अस्पताल के अहाते में एहतजाज भी किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 7 दिनों से उनके मरीजों को मुख्तलिफ सर्जरियों की तारीखें दी जा रही हैं, लेकिन आज जब वो अस्पताल गए तो हुक्काम ने बताया कि डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की वजह से सर्जरी मुमकिन नहीं है। उन्होंने आला हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है। इंतजामिया के हालिया हुक्मनामे के तहत महकमे सेहत के तमाम मुलाजमीन को अपनी जगहों पर तैनात किया गया है। इस हुक्मनामे के बाद कुपवाड़ा अस्पताल में मुलाजमीन की कमी पैदा हो गई है। बीमारों और अस्पताल में दाखिल मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में डायलिसिस के मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। वहीं अस्पताल में जेर इलाज मरीजों का कहना था कि मुलाजमीन की अदम दस्तयाबी से उनकी तिब्बी जांच के साथ साथ इलाज और मुआवजा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार को डिटैचमेंट के बाद मुलाजमीन का इंतजाम करना चाहिए। लोगों ने आला हुकाम से इस मसले को जल्द हल करने की अपील की है। गवर्नमेंट हस्पताल सबक कर किराए लेकिन बहुत पैदल अड़िस आव लोड कैरियरस मज बच्चे मे ठकर पेवान दी ये स्टाफ बे 9 बजे पे प्यारान ये मुलाजिम स्टाफ न्यू वापस स्टाफ पेशेंट कर कि 4 ये 5 पेशेंट ये 10 नफर दान बचाए 8 ये 7 मजदूर ये 5 युतान सोन की सूरत करो आज के जब अस्पताल में नबर जो डायलिसिस सेंटर्स पे वो डायलिसिस कहीं करा दम मतलब मर खतरे अगर डायलिसिस गए स्टाफ ट्रांसफर वही 2 नफर सेम सिर्फ 2 नफर बे बाकी 3 नफर क्या करो खत्म। सरकारी अराजी और अवाम के नाम मुख्तस घास चराई और दीगर ज़मीनों पर किए गए गैर कानूनी कब्ज़ों के हटाने वाली तमाम तर सरकारी मुहिमात के बावजूद ज़िला रामबन के खड़ी बुज़ला में आज तक महकमे माल की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकी है, जिसके नतीजे में असर रसूख रखने वाले लोग अभी तक सरकारी अराजियों पर कब्जा जमाए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। रामबन के दूर दराज इलाका बुज़ला में सरकारी जमीन घास चराई पर चंद असर और रसूख वाले लोगों के कब्जे को हटाने को लेकर दी गई कई दरख्वास्तें गैर मुअस्सिर साबित हुई हैं। वाज़ेह रहे कि खड़ी बुज़ला के इलाका खारान हालन में महकमे माल की जानिब से की गई निशानदही के मुताबिक खसरा नंबर 487 को घास चराई बताकर आज से 1 दहाई कबल इस जमीन को खाली कराने के अहकाम सादिर किए गए थे, जिस पर अफसरान ने कार्रवाई करते हुए सिर्फ 3 कनाल जमीन से कब्जा हटाया। बाकी 22 कनाल जमीन अभी भी चंद लोगों के जेर इस्तेमाल है। मकामी लोगों के एतराज के बावजूद अभी तक महकमे माल के अफसरान कोई कार्रवाई करने से कासिर हैं।
हमें 2011 में अब्दुल अजीज वल्द रजब ने ये लाया आर्डर बेदखल का 25 कनाल 5 मरले 487 नंबर पर लाया बेदखली, और फिर तहसीलदार चढ़ा जनाब, तहसीलदार ने उस वक़्त खाली हमारा 2-4 कनाल बेदखल किया, बाकी बोला, हमने कहा जनाब ये 1 ही नंबर है 487 बेदखल पूरा के पूरा होना चाहिए। तो तहसीलदार साहब ने बोला अब तू आर्डर लाएगा, जैसे ये आर्डर लाए। फिर हमने डीसी साहब से आर्डर लाया, डीसी साहब ने कहा वो जब 487 एक ही नंबर है वो फिलफोर मतलब बेदखल होना चाहिए, अब उसने क्यों अदाई किया। हमने जनाब जब वापस आए उसने खाली ये 4 कनाल हमारा बेदखल किया, तब से यहाँ तक हम रोते आए, कोई सुनता नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। परसों जम्मू चले गए मैं कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब ने लिख कर दिया नोटिस डीसी साहब के पास, डीसी साहब ने दिया एडीसी साहब के पास, एडीसी साहब ने दिया तहसीलदार को, तहसीलदार ने दिया पटवारी को। भी यहाँ बसने वाले हैं 100 साल से जनाब, तो अब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। हम यही अपील करते हैं जनाब कि हमें इंसाफ दिलवाओ। मोअज़्ज़ज़ आदमी को भी समझ नहीं आ रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब निशानदेही कर रही है, अगर 25 कनाल की बेदखली करनी है तो 2-3 कनाल की हो रही है, 23 कनाल जो है उनकी क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें यहाँ के मोअज़्ज़ज़ भी और पैंच खड़पंच सब उसमें तो हैंग हो चुका है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही लड़ा रहे हैं। मुझे यही समझ आ रहा है कि वही लड़ा रहे हैं इन दोनों फ्रीकन को। साहिल का कहना यही है कि ये 25 की 25 बेदखल होनी चाहिए, न कि हमारी 2 कनाल। अगर ये इंसाफ है हमारे 2 कनाल बेदखल हो जाए तो ये बाकी रह जाएगी इनके पास, ये कौन सा इंसाफ है। बुज़ला के रिहायशी गुल मोहम्मद व मोहम्मद शफी की जानिब से गैर कानूनी तामीर और घास चराई पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए दी गई दरख्वास्त पर महकमे माल के अफसरान ने अभी तक कोई खास कार्रवाई अमल में नहीं लाई। वहीं इस ज़मन में तहसीलदार खड़ी अमित उपाध्याय से फोन पर बात की तो उनका कहना है कि फाइल डीसी ऑफिस रामबन में है, इसकी जांच के बाद इस मामले को लेकर हतमी फैसला किया जाएगा और गैर कानूनी कब्जे को हटाया जाएगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या इशू आया और हाउ टू टैकल दिस इशू सर? इसको यही है कि वहाँ इन्होंने क्या किया, जो पहले मेरे प्रीडिसेसर्स थे उन्होंने जो जैसे आपने बोला 2-3 कनाल वहाँ एविक्शन कराई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद उन्होंने फाइल जो सी है वो डीसी ऑफिस भेजी। राइट सर। अब बेसिकली यहाँ पुरानी तहसील थी, पहले नीचे थी बाजार में, अब यहाँ शिफ्ट हुई है पर डाबंगलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ हमें यहाँ फाइल नहीं मिली। अच्छा। अब मैंने पटवारी को पिछले हफ्ते बेसिकली JKI ग्राम्स में भी कंप्लेंट लगाई हुई है। अच्छा सर। तो मैंने पटवारी को बोला, हुआ उसको त्रिगाम का पटवारी है, बेसिकली वो गांव त्रिगाम पड़ता है। अच्छा त्रिगाम। तो हाँ त्रिगाम का ऐसा है वो। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा डीसी ऑफिस में फाइल पड़ी होगी तो वहां से फाइल ले आए, जो बीच में ऑर्डर है अगर हमें ऑर्डर होंगे कि इसको कराना है तो हम इसको सारे सबको भी कराएंगे, नोटिस निकालेंगे सबको। ठीक सर। ठीक है ना जी। 1-2 नोटिस निकाले, नहीं खाली करेंगे तो ऑर्डर पुलिस लेके जाएंगे। एक जानिब इंतजामिया गैर कानूनी कब्जे वाली अराजियात को बाजियाब कराने की मुहिम को जोरों शोर से चला रही है, ताहम कई इलाके जात में ये मसला शिकायत के बावजूद हल न किया जाना एक सवाल निशान है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। सयाहत को मजीद फरोग देने के साथ साथ ऑफ बीट सयाहती मकामात को नक्शे पर लाने के हवाले से महकमे सयाहत ने अहरबल फेस्टिवल का एहतमाम अमल में लाया है। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जे नेतू ने कहा कि रवा साल सयाहत के शोबे में एक उछाल देखने को मिला है। सयाहों के भारी आमद से यहाँ की मईशत में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अहरबल में ट्रैकिंग, कैंपिंग और साइकिल रेस के अलावा दीगर प्रोग्रामों का इनकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर जिला अफसरान समेत मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और कोहे पैमा मौजूद रहे। हमने प्लान किया हुआ टेंटेड अकोमोडेशन का, यंगस्टर्स आकर के, यहाँ के लोकल जवान आकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक अच्छा नया एक्सपीरियंस दे सकते हैं। होम स्टेज की पॉलिसी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली होम स्टे की गाइडलाइंस इशू हो गई है, तो यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स तमीर करना या बड़ी बड़ी इमारतें तमीर करना कोई रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये इको सेंसिटिव जोन्स है और अगर यहाँ लोग होम स्टेज के लिए तैयार हो जाए, रजिस्ट्रेशन करें, जो कि हमने एक मिशन मोड में प्लान किया हुआ है कि हमें जो ऑनरेबल LG साहब की तरफ से एक टारगेट दिया है कि 25,000 बेड्स जो ऐड करने हैं थ्रू होम स्टेज एंड टेंटेड अकोमोडेशन, उस पर हम लगे हुए हैं। और आज इसके बाद जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, इसके बाद एक जो होम स्टेज का कैंप है वो हो रहा है, जिसमें अवेयरनेस दी जाएगी, फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडिशनल DD साहब इधर ही हैं
और SDM साहब इधर हैं, पुलिस की तरफ से उसमें थोड़ा सपोर्ट चाहे. आई एम श्योर द वे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइन डिपार्टमेंट्स आर सपोर्टिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट. बांडीपुरा के अहरगाम इलाके में B.Ed कर रहे कुछ असातिज़ा ने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनफरिद नौइयत का वॉल ऑफ काइंडनेस कायम किया है. इसके अलावा स्कूल में कश्मीर के रिवायती खेल जैसे सजलुंग को भी नए सिरे से मुतारिफ कराया गया है. वॉल ऑफ काइंडनेस की खास बात यह है कि तलबा और तालिबात के अलावा स्कूल का अमला किताबें, स्टेशनरी और कपड़े, जूते वगैरह जमा करा सकता है, जिसका इस्तेमाल स्कूल के माशी तौर पर कमज़ोर बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं. इंजॉय कर रहे हैं और ये सजलों गेम हमारे यहाँ पे सभी खेल रहे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा. और ये हमारे जो हमारे टीचर्स आए उन्होंने हमें बोला आप खेलो, आप इसका मज़ा ले लो, कैसा मज़ा है इनमें. और हम माशाल्लाह हम सब खेल रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये गेम खेलने में. जो हम ये गेम खेलते हैं रवायती गेम है जो हम शुरू से खेलते थे लेकिन आज बहुत कम खेलते हैं. इस गेम में हम एक बाल होता है जो कपड़ों का बना होता है. और तो हमें ये टास्क दिया गया है कि आप स्कूलों में जाके कुछ ऐसी चीज़ें करें जो बच्चे मुनफरिद महसूस करें और बच्चे एंजॉय करें. तो सर हमें ये आइडिया आ गया कि हम रिवायती खेल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमारा साजलोंग है और गरमस है. यहाँ मैसर होगा, चाहे किसी की बुक्स, खासकर बुक्स की बात करते हैं और नोट बुक्स या टेक्स्ट बुक्स वगैरह जिनकी जो भी होंगी, चाहे टीचर्स की भी होंगी और अगर दूसरे कुछ यूनिफॉर्म्स भी होंगे, कपड़े कुछ होंगे, वो भी इसमें आ सकते हैं. तो सब के सब हम बाद में बांट देंगे. जो भी बच्चे ज़रूरतमंद होंगे, मुस्तहिक होंगे, उन्हें बांट देंगे. तो ये हम कोशिश करें और अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि इस वॉल ऑफ काइंडनेस जो एक हमें दिया गया आइडिया, इसको हम एक अच्छी तरह से एक अदारे में तब्दील करके रख देंगे. श्रीनगर शहर के शहर खास इलाके में एक नया रेस्टोरेंट कम ट्राउट मछली फरोख्त करने का मरकज़ कश्मीर ट्राउट खोला गया है. कश्मीर ट्राउट का इफ्तिताह आज केबल कार कॉरपोरेशन के MD गुलाम जिलानी जरगर ने श्रीनगर के बुजुर्ग शहरियों की मौजूदगी में किया. कश्मीर ट्राउट न सिर्फ 24 घंटे ताज़ा ट्राउट मछली फराहम करेगा बल्कि अपने सार्फिन को ताज़ा पकी हुई ट्राउट मछली भी पेश करेगा. वादी कश्मीर में कश्मीर ट्राउट के इस चेन के मालिक 3 नौजवान कारोबारी हैं. बेसिकली जो हमारा ये ब्रांड है कश्मीर ट्राउट, हम लोग बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेच पाते हैं. यहाँ पर मोर देन 250 फार्मर्स इंटीग्रेटेड है जहाँ पर इनका प्रोड्यूस यहाँ पर आता है और यहाँ पर सिटी सेंटर में सेल होता है. बेसिकली ये शहर खास के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि उनके लिए सिटी सेंटर के अंदर स्पेशली रनावरी की जगह पे आपको आप लाइव ट्राउट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं पीछे. तो ये अपने आप में ये मतलब जो इसके शौकीन है उनको आप दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिटी के अंदर ही उनको ट्राउट मतलब दस्तियाब है. और इसके बगैर भी हमारा ऊपर रेस्टोरेंट है जहाँ पर ट्राउट के रिलेटेड डिशेस है और उसके बगैर इंडियन या कश्मीरी स्पेसिफिक डिशेस भी है जो कि लोग आके मतलब इसका लुत्फ ले सकते हैं. ये काफ़ी बहुत बेहतरीन यहाँ पर फैसिलिटी खुल चुकी है ट्राउट के रिलेटेड. एक फ्रेश ट्राउट की जो ये यहाँ पर सर्विस ओपन हुई है ये काफ़ी उम्दा है और बहुत सारे जो शौकीन हैं ट्राउट के वो यहाँ पर आके जाके अपनी शौक को पूरा कर सकते हैं. कनिहामा हमजा कॉलोनी नौगाम के रिहायशियों को इस इलाके में बुनियादी ढांचा न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है. श्रीनगर शहर के करीब होने के बावजूद इस इलाके की सड़कें खस्ता हाल हैं. पानी की निकासी का मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से बारिश का पानी न सिर्फ सड़कों पर जमा होता है बल्कि घरों में भी दाखिल हो जाता है. इलाके के लोग हर तरफ अपनी मुश्किलात दर्ज करा चुके हैं लेकिन अब तक न तो इस इलाके में निकासी का कोई मुनासिब निज़ाम नस्ब किया गया है और न ही सड़कों को दुरुस्त किया गया है. त्रोमुत एप्लिकेशन कर लट इतला करो ये दब लगान बचन बना नबर नेरुन रात द्राय ये हमसाय लडीज अम्स लोग ये दब अम्स फुट कोट सह एडमिट अमिस सोन कह बोजान यह सिटी नज़दीक. सबसे पहले ड्रेन बना के दीजिए हमें जो कि यहाँ सबसे मस्ट है. अगर सड़क आप देखिए सड़क की हाइट और कॉलोनी कितनी, ये जो यहाँ पे अभी लगा है हमने खुद डाला है यहाँ पे चलने के लिए, लेकिन इवन उसके बाद भी आप देखिए कितना डालेंगे हम. पानी सड़क से आ रहा है सीधा मकानों में अंदर जा रहा है. कम से कम गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए ये क्या बात है. तो बस हमें यही कहना है कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये हल होनी चाहिए.
اننتناگ کے مضافات میں واقع ہالن لارنو کا علاقہ دور جدید میں بھی سڑک اور مواصلاتی سہولیات سے محروم ہے، جبکہ علاقے کے لوگ معاشی اور سماجی طور پر کافی پسماندہ ہیں۔ لوگوں کے مطابق علاقے کو جانے والی رابطہ سڑک اب بھی کچی ہے اور انہوں نے بارہا یہ مسئلہ متعلقہ محکمے کی نوٹس میں لایا۔ علاقے میں موبائل ٹاور کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہاں کا مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہے اور فون کال کرنے کے لیے لوگوں کو مناسب جگہ کی تلاش رہتی ہے۔ اپنے مطالبات کو لے کر یہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہے اور انتظامیہ سے علاقے کے مسئلے کا حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے LG انتظامیہ اور DC اننتناگ سے بھی مسائل کی جانب فوری توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ یہ تو پرابلم ہے، بہت کچھ کرنی پڑتی ہے ہمیں۔ اگر کہیں بیمار ہو جائے گا تو ہمیں جہاں سے اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے، لارنو میں ہسپتال تک پہنچانا پڑتا ہے۔ پرابلم کی طرف جائے تو پرابلم بہت ہے، ہمیں بہت سی پرابلم ہے یہاں۔ گزارش کریں مہربانی کر سڑک مسئلہ گۄڈنیُکُے سڑک مسئلہ، دوٚیِم ٹاورُک مسئلہ، ترٛیٚیِم یِمن شانگس خانس چون سن چولہٕ 10 یِم حظ گژھِ یتھ سۭتۍ رلٕنۍ اَسہِ برنگس سۭتۍ مہربانی کٔرِتھ۔ GMC ڈوڈا میں آپریشن کر کے ایک شخص کے پیٹ سے ایک ٹوتھ برش نکالا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کئی لوگ ٹوتھ برش کو گلے تک لے جا کر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک غلط طریقہ کار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مریض نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا تھا، جس کی وجہ سے پورا ٹوتھ برش اس کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ GMC ڈوڈا کے MS ڈاکٹر یدھویر سنگھ کا کہنا ہے کہ مریض کے پیٹ سے برش نکال لیا گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ مریض کا تعلق سری نگر شہر سے ہے اور ڈوڈا میں کاروبار کرتا ہے۔ اس کامیاب سرجری کو اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر بابر رشید زرگر نے انجام دیا۔ برش کرتے تھے، اچانک منہ سے پھسل گیا، بس پیٹ میں چلا گیا برش، اس کے بعد آپریشن کر دیا، سرجری۔ تو آپ ریگولر اسی طرح سے برش کرتے ہیں؟ میں 20 سالوں سے اسی طرح کرتا تھا، آج کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ اوپر والے کی طرف سے تھا۔ تو اب کیسے؟ بس اب تو اللہ کی مہربانی ہے، کافی اندر تو نہیں ڈالنا چاہیے، ویسے سوچنا چاہے کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے۔ یہ یوزلی جو ہے کچھ لوگ جو ہیں ہیبیچول ہوتے ہیں، وہ وامٹنگ انڈیوس کرتے ہیں ٹوتھ برش سے، تو وہ پاسبلی وہ وامٹنگ انڈیوس کر رہا تھا اور وہ جو ہے وہ نیچے نکل گیا اور پیٹ میں لینڈ اپ ہو گیا۔ یہ پہلے بول نہیں رہا تھا کہ ایکچولی ہوا کیا، وہ صرف پین ایبڈومن کر کے وہ کر رہا تھا، تو بعد میں جو ہے بیسکلی جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر جو ہے ٹوتھ برش ہے، تو اس کا پیٹ جو ہے وہ کھولا گیا اور وہ جو ہے ٹوتھ برش جو ہے وہ نکالا گیا۔ پیشنٹ جو ہے اسٹیبل۔ آج کاچو سعادت ٹریفک انسپکٹر DTI کی نگرانی میں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کے ساتھ مل کر ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن پلیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ نیوز 18 کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے DTI ٹریفک نے کہا کہ وہ کرگل میں ایسی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں جن کے پاس ایسی کوئی پلیٹ یا دستاویزات نہیں ہیں۔ سے کہ جو بھی گاڑی وداؤٹ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس ہوں گے ان کو سیز کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں UT ایڈمنسٹریشن نے 2 بار ایک ڈیڈ لائن ٹائم دیا تھا کہ اس میں اپنے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس اپلائی کر کے حاصل کریں، لیکن فائلز بہت پینڈنگ تھی، اس وجہ سے ڈیڈ لائنس کو ایکسٹینڈ کیا تھا، تو لاسٹ ڈیڈ لائن ہمارا 31 جولائی کا تھا۔ لیہ میں انجمن یوتھ فیڈریشن کی جانب سے محرم الحرام کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ نے بھی ہر سال کی طرح امسال بھی مکمل تعاون دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہیں آج جگہ جگہ پر جلوس عزا برآمد کیے گئے۔ نوجوان یوتھ فیڈریشن لیہ نے لنگر کا بھی اہتمام کیا تھا۔ حسینی لنگر میں آپ سے کہوں گا کہ حسینی لنگر ہم محرم کی 1 تاریخ سے شروع کرتے ہیں محرم کی 10 تاریخ تک، تو اس میں نہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی برادر ہو، یہاں ہر کوئی آ کے کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ 10 تاریخ تک حسینی لنگر رکھتے ہیں، اور حسینی لنگر میں جو تبرکات ہوتے ہیں وہ بھی کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ جی، کانگریس کے سینئر لیڈر محمد امین بٹ نے محرم الحرام کے متبرک قیام کے سلسلے میں حلقہ انتخاب دیوسر کے وانگام علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے شیعہ آبادی والے علاقے میں محرم کی تقریبات کے حوالے سے سہولیات کا جائزہ لیا، ساتھ ہی انہوں نے پینے کے پانی، بجلی، صحت اور صاف و صفائی کے علاوہ دیگر سہولیات کو بہم پہنچانے پر زور دیا۔ انہوں نے انتظامیہ سے عزاداروں کے لیے ہر قسم کی سہولیات کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔ پرابلم تھی پانی کا، پانی بہت گندا ہے،
उसी वक्त मैंने एक्जन से बात किया और कल से इनको टैंकर में पानी भी मिलेगा, पानी भी साफ़ मिलेगा। दूसरी बात, म्यूनिसिपलिटी डिविज़न से मैंने बात की अभी अफसर से, वहाँ का भी टीम आया और मौके पर उन्होंने काम शुरू किया, वो मसला भी हल हो गया। तीसरी, दवाई का मसला वो भी हल होगा। चौथा मसला है फूड का, वो भी होगा। और पावर का मसला है, वो भी मसला हल हो जाएगा। उनसे भी मेरी बात हुई, प्रायोरिटी पर ये मसला हल करेंगे। और यहाँ ये बाथरूम का मसला, ये भी म्यूनिसिपलिटी से मैंने उठाया, ये भी प्रायोरिटी पर। यूज प्लास्टिक बैन के सिलसिले में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदर हिलाल अहमद शाह की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। ट्रेड नुमाइंदों के अलावा ACR अनंतनाग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ज़िला अफसर समेत दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। हिलाल शाह ने अवाम, कारोबारियों समेत दीगर मुतल्लिकीन से प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की अपील की। अनंतनाग जम्मू श्रीनगर के बाद सबसे बड़ा मरकजी शहर माना जाता है, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर यहाँ से ही एक मैसेज दें कि अनंतनाग वो पहला शहर था, वो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है इस्तेमाल टोटली बंद हुआ है। इसमें कई सारी चीज़ें आप देखिए, मैक्सिमम चाहे शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे उसमें आप प्लास्टिक के प्लेट, चाहे उसमें आप स्पून्स, चाहे उसमें गिलास, चाहे छोटी मोटी कवलियाँ, वो जो इस्तेमाल होती है उन पर बैन लगाया। पॉलिथीन के खिलाफ म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी। म्युनिसिपल काउंसिल ने बडगाम को प्लास्टिक से पाक करने का हदफ रखा है। चेयरमैन मुश्ताक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने दुकानदारों और दीगर तिजारती मराकज़ को प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील की। SHO बडगाम, ट्रेडर्स और दीगर अफराद भी इस मौके पर मौजूद रहे। म्युनिसिपल सदर का कहना है कि इंतजामिया प्लास्टिक के खिलाफ है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारी कोशिश है, ये 15 दिनों का प्रोग्राम है। आज 1 अगस्त से हमने इसका आगाज़ किया है। इंशाल्लाह 3 तारीख को हम अपने डिस्ट्रिक्ट में, हमारे अपने टाउन में 10,000 जूट बैगों का जो हम कैंप लगाएंगे उसमें वो तकसीम करेंगे। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमारा ये जो पॉलीथीन का सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए। जूट बैग, कैरी बैग हम यहाँ से पहले लोगों के हाथों में देंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर घर तक वो हमारी मैसेज पहुँचे और वो बैग भी पहुँच जाए। चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ज़िला गांधरबल में आज से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल के हमरा आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के अफसरान और ताजिर यूनियन गांधरबल के मेंबरान भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दुकानदारों और दीगर ताजरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। चेयरमैन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पॉलिथीन पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। प्रोग्राम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त की पॉलीथीन जो है इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना है। अभी सख्त हिदायत है कि ये आज के डेट से बंद कर देना है। तो चूँकि ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है, काफ़ी दहाइयों से ये चल रहा है और इसको जब हम बंद करने जा रहे हैं तो इसके लिए एक बिल्कुल टीम की ज़रूरत है, जिस टीम की हमने कोशिश की है कि उसको तश्कील दिया जाए और अभी तक जो है हम उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। आज के बाद गांधरबल में जहाँ भी पॉलीथीन दिखेगा उसको हम बैन कर रहे हैं और जिससे भी पकड़ा जाएगा उससे हम एक तो सीज करेंगे, उनको फाइन भी करेंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हवाले से टाउन हॉल बांडीपुरा में अर्बन लोकल बॉडीज़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल और ज़ख़ीरा करने पर आयद पाबंदी को अमलाने और जानकारी फराहमी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। बल्दिया के सदर बशारत हुसैन, नायब सदर नसीर अहमद मीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वली मोहम्मद के अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और महकमे जंगलात के अफसरान मौजूद रहे। सिविल सोसाइटी अरकान और ताजिर बरादरी समेत दीगर नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद रहे। बशारत हुसैन का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि जब लोग अवेयर होंगे ज़ोर ज़बरदस्ती या दुंस दबाव से कोई भी मसला हल नहीं होगा। और हमारी कोशिश रहेगी पहले हम उनका अवेयर करेंगे। अवेयर न होने के बाद अगर कोई भी ऐसी हरकत मिले, कोई भी शख्स या कोई भी दुकानदार इसमें मुलवस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ FIR भी लग जाएगा, उसके खिलाफ जुर्माना भी आयद हो जाएगा। म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा की जानिब से प्लास्टिक और पॉलिथीन मुखालिफ रैली निकाली गई। कमेटी के चेयरमैन बिलाल अहमद ने रैली का इफ्तिताह किया। रैली में सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स फेडरेशन के अरकान ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार ने लोगों से पॉलिथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की। जानते हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में पॉलिथीन बैन हो चुका है
इसका बाज़ाब्ता तौर पर एक आर्डिनेंस जारी किया गया है, जिसकी वसादत से आज जो आज तारीख है, आज से ये लागू हो रहा है। हमने प्लास्टिक को नेस्त नाबूद करना है, यहाँ से किसी जगह पे पॉलीथीन दिखाई नहीं देना है। हम दुकानदार हजरात से, खासकर हम दुकानदारों से गुजारिश करते हैं कि कोई भी दुकानदार किसी किस्म का भी कोई प्लास्टिक ना रखे। इसके बाद आज तक हमने बहुत ऐलान किए, बहुत बार इनको अवेयर किया, लेकिन आज के बाद सीधा इसमें जुर्माना ही भरना पड़ेगा। म्यूनसिपल कमेटी त्राल की जानिब से पॉलीथिन मुखालिफ मुहिम के हवाले से एक अवामी बेदारी मुहिम का आगाज़ किया। स्कूली तलबा और दुकानदारों को पॉलीथिन के मुज़िर असरात से आगाह किया गया। सेक्रेटरी MC त्राल नज़ीर अहमद ने मंजूर खान और सदर MC त्राल का कहना है कि पूरे मुल्क में पॉलीथिन पर पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने कहा कि त्राल टाउन को पॉलीथिन से साफ व पाक रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कस्बे को पाक व साफ रखने में ताउन करने की अपील की। मतलब यह है कि जो भी इसका स्टॉकिस्ट होगा या रिटेल होगा या यूज़ करेगा तो वो फिनिशेबल है। अंडर एक्ट उसको फिनिशेबल बनाया गया है। अभी तक हमने 2-3 जगह पे पकड़ा है, बहुत ही कम क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे कोई होलसेल स्टॉकिस्ट नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन किसी जगह हमें मिला है तो वो हमने सीज किया है। लेकिन हमारी आज से जो भी इसके साथ वाबस्ता होगा उसको अपील है हमारी तरफ से कि वो इससे तरक करे। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में 10 रोज़ा वॉलीबॉल मुकाबले का आगाज़ किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर बशीर अहमद ने इस मुकाबले का इफ्तिताह किया। वादी कश्मीर के 10 अजलाक की टीमें इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। महकमे ने उम्र के मुख्तलिफ ज़ुमरों में वॉलीबॉल के मुकाबले मुनक़िद किए हैं। नौजवानों का कहना है कि ऐसे मुकाबलों से खिलाड़ियों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है। अच्छा है, क्योंकि लड़का जो है इससे या कोई भी खिलाड़ी इससे ड्रग्स की तरह दूर रहता है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि ये अच्छा प्लेटफार्म है। ये स्कूल गेम्स जो है वो 3 दिन ये 19 एज ग्रुप है, उसके बाद 3 दिन 17 का और 3 दिन 14 का है। यहाँ से एक टीम सिलेक्ट होके जाएगी जो अब कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है इंटर प्रोविंस कंपटीशन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से पुलवामा में ईट राइट हेल्थी मील मुनक़िद किया गया। स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के साथ साथ वॉक रन और मुसव्वरी मुकाबले में हिस्सा लिया। मेले में मुख्तलिफ महकमों और निजी कंपनियों की जानिब से ख़ुसूसी स्टॉल कायम किए गए थे। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान ने बीजेपी को हर घर तिरंगा पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने 1947 से लेकर आज तक तिरंगे की शान के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा का नारा लगाकर बीजेपी लोगों की तवज्जो को बुनियादी मसाइल से हटा रही है। उमर जान ने कहा कि बीजेपी कौमी परचम की आड़ में सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को मफाद परस्त सियासत से बाज रहना चाहिए। वो एक दिली जज्बा होता है अपने मुल्क का तिरंगा उठाना। उसकी शान तो ऑलरेडी है ही, मगर जिस प्रकार से भाजपा ने इम्पोज किया है वो तिरंगा और इस झंडे की नीलामी मत करें। और ये नीलामी आप लोगों को भारी भी पड़ेगा मुल्की लेवल पे, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में भगत सिंह ने जन्म लिया और भगत सिंह ने अपने झंडे को हमेशा ऊंचा रखा है और हम उसी मुल्क के नागरिक हैं। हमारा जो मुल्क है, इस मुल्क के तई बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं जब हमारा झंडा ऊंचा करने के लिए मुहिम एक चलाई गई। लेकिन हम महात्मा गांधी जी के उसूलों और उनके जो आदर है उसको लेके हम इस मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। कारमुला त्राल में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से लोग परेशान हैं। इस सिलसिले में मकामी आबादी ने इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज दर्ज किया। लोगों का कहना है कि इस जदीद दौर में हर इलाके में मोबाइल नेटवर्क से मुंसलिक है, ताहम 400 चूल्हों पर मुश्तमिल इलाके में अभी तक इस सहूलियत नहीं है। एहतजाजियों ने आला हुकाम से इलाके में टावर नस्ब करने की मांग की है। वनकन किस जदीद दौरस में इंटरनेट सहूलियत कहीं पे कॉल करने खतर जरूरी घर में नबर नेरन, या पे सड़क पे गन या कुछ बटिस पे गन ये टावर पे हेकान कत कर तो डाउन ये पढ़ने कह जिक्र। बस्ती वनकन लगभग 400 चूल्हन पे 400 चूल्ह सारी गन सफर अमि की वजह से पे त्राल पे रुख खसन यम काम करने खतर। ये CSC सेंटर सह वनकन आमुत बेस जाए तब्दील करने क्या नेटवर्क चलान कहीं। ये सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंटस
अपील करन कि अस गई प्रॉब्लम दूर इन करना अख मोबाइल टावर अगर अस दिया। सांबा के विजयपुर के रहने वाले कमल सिंह को मलिका अवध कोइंस ग्रुप की जानिब से बेस्ट एक्टर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ये अवार्ड तकरीब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुनक्किद की गई थी। कमल सिंह के मुताबिक वो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं और अब वो कश्मीर पर एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं। गाने वगैरह करता रहा हूँ, काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ। जो सारी जनता ने मुझे बहुत प्यार भी दिया उसके लिए मैं शुक्रिया भी करता हूँ। और वही प्यार था और हमारी मेहनत थी, मेरी टीम की, मेरी फैमिली का सपोर्ट था, जिसके बाद मैंने जाके लखनऊ में जाके मलिका अवध शो था, अवार्ड शो था जो, वहाँ पे जाकर ये अचीव किया बेस्ट एक्टर अवार्ड। मैंने शॉर्ट मूवीज़ की हुई है। वैसे बेसिकली हमारा फोकस इस टाइम ड्रग्स के ऊपर। तो बहुत गर्व की बात है, हाँ बहुत खुशी की बात है कि हमारा माता पिता का नाम भी रोशन किया है, सांबा डिस्ट्रिक्ट का भी किया है तो जम्मू कश्मीर का भी किया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ के 11वीं जमात में फेल होने वाले तलबा ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर बच्चों के सरपरस्तों ने कॉलेज के असातिज़ा पर निसाब मुकम्मल नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया। वहीं मामले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा ने इस मामले में जांच की यकीन दहानी कराई है। साबिक MLA M सरवरी ने खारा, जकियास, भलीसा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से बातचीत की। उन्होंने खारा के सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने, बारिश और सैलाब से फसलों को होने वाले नुकसान का तफसीली सर्वे किया। मनरेगा की ज़ेर इल्तवा अदायगी का मसला भी इस दौरान पेश किया गया। M सरवरी ने लोगों को कम यकीन दहानी की कि वो अवाम के हक़ में हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को हर महाज पर नाकाम करार दिया। ज़्यादा बारी हुई, फ्लड आ गया जिसमें कारा की दुकानें गई, स्कूल गए, घाट गए और उसके अलावा बहुत सारे एरिया में ज़मीन वगैरह जो है वो भी तबाह बर्बाद हो गई है। और गवर्नमेंट ने अभी तक उनको नहीं, SDRF ने कोई मुआवजा दिया नहीं। स्टेशन को ये जो सैलाब ज़दा लोग हैं इनका स्पेशल पैकेज में मदद करें, SDRF में मदद करें। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।